In the previous video lecture, we have studied about structure of atom, that we have studied about the models and atomic number, mass number. So I hope that part is clear to you. Now, what is atomic number? It is the number of protons or equal to number of electrons when it is neutral, and it is denoted by Z. What is mass number? It is the number of protons plus number of neutrons, and it is denoted by capital A. Okay, how to find number of neutrons? Number of neutrons is nothing but mass number minus number of protons, or you can say mass number minus atomic number. Then we have studied isobars, isotopes, and isotones and isoelectronic species. I hope that is also clear to you. Now moving to the next part of our chapter, that is development leading to Bohr atomic model. Now, what is the developments that lead to the Bohr atomic model? Before that, during the period of development of new models to improve Rutherford model of an atom, two new concepts played a major role. So before studying the Bohr's model, Niels Bohr was a scientist who gave this Bohr model. You have studied about this in your standard 9, that is the orbits, electrons is revolving in an orbit in a discrete manner. If it has to go from one energy level to another energy level, then it has to gain some energy. Okay, that you have studied. So before going to that in detail, we should know these two important things that played a very major role for the formulation of Bohr model of an atom. So which were they two? That was dual behavior of electromagnetic radiation and atomic spectra. Now, the earliest view of light, due to Newton regarded light as made up of particles. Newton's, according to the classical mechanics, he said that light is made up of particles. He said only light is made up of particles. Now, the particle nature of the light explained some of the experimental facts such as refraction of light. But however, it failed to explain to us about the interference and diffraction. What is interference and diffraction? That also we will see. So, many scientists who came forward to see out the wave theory of the light, okay, explained us about the wave theory of the light. So dual behavior of electromagnetic radiation means that your wave can behave. This means that light has both particle like and wave like property. It means जो light है, the source of light which you are using, it can shows you both the properties, that is sometimes it shows you the particle like and sometimes it shows you the wave like properties. Now when it shows the particle likes and wave likes property, that we will see. Second is atomic spectra. Now what is atomic spectra? That is the results regarding atomic spectra of atoms can be explained by assuming quantized in the sense fixed electronic energy levels in atoms. Ki energy, atoms has a fixed energy level and it gains some energy and then it moves to some another energy level from ground state to excited state. That we will also study. So let us start with the very first, that is dual behavior of electromagnetic radiation. Now as I said, light can behave as wave like and particle like. Now how it behave as a wave like and when it behaves like a particle like nature, that we will see. So wave nature of electromagnetic radiation. Electromagnetic in the sense electric and magnetic field. Now what do you mean by wave? What is wave? Wave क्या होता है? So it is nothing but a mode of carrying energy from one place to another. Wave क्या है? It is a mode of carrying energy from one place to another. Best example I can say you, when you drop a stone or a pebble in the pond of water, what you can see the ripple formation over there. वहाँ पे आप ripple formation देखते हो. अब तो क्या हो रहा है, एक energy wave, the energy of wave is transforming from one wave to another, then to another, as you can see over here. It has transforming, ये ripple formation था, right? It is transforming from one to another. Okay, एक से एक दूसरी जगह पे वो क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है. इसको बेस्ट कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? How can I explain it in the best way? Same, you're seeing a pond, you're throwing a water, and at some distance there is a leaf over there, or you can say a paper over there, a light weighted object is over there floating on the water. So when you throw the pebble, that leaves change its position from one location to another, changes position from one way to another. How it changes? Because when you throw that
stone, ripple formation take place. Waves are getting generated, and that waves transfer the energy from one sort of location to another. Or you can say a wave can be described as a disturbance that travels through a medium or without a medium, or you can say without a medium in space, transporting energy from one location to another location. Now sometimes a wave required a medium, sometimes a wave do not require a medium to travel. For example, I am saying you that when it requires a medium to propagate, they are known as mechanical waves, and when it does not requires any medium for propagation, they are known as non mechanical waves. Like non mechanical waves में आपका क्या आ जाता है, यूवी रेडिएशन आता है, सन रेज आता है, रेडियो वेव्स आता है, x-rays आता है. They do not require any medium to propagate, whereas the one which requires medium to propagate is the sound wave. As I am talking to you means मेरे जो रूम है वहाँ पे there is some sort of air, तो उसकी वजह से वो क्या हो रहा है, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, एंड वो आपको साउंड वेव्स के फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहा है. रिपल का एग्जाम्पल मैंने आपको सिखाया, रिपल वेव ये वाला as is known as रिपल वेव. तो ऑब्वियसली वहाँ पे कुछ पुट आउट हो रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कवर अप होके जा रहा है. ठीक है, समझ में आया? दैट इज नोन एज वेव. नाउ यू कैन सी ओवर हियर सेम वो ड्रॉप ऑफ वाटर कैसे फॉल हो रहा है और कैसे वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और धीरे 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 क्या हो रहा है, वो खत्म हो जाता है. ठीक है, वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करता है. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन? In 1870, James Maxwell Clark proposed that light and other forms of radiant energy propagate through space in the form of waves. What does it say? That light and the other form of radiant energy propagates through space in the form of waves. मतलब they do not require any medium to propagate. So this wave have electric and magnetic field associated with. ये वेव्स के पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद देम, देयरफॉर दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और यू कैन से when a electric charge particle you has a charge particle and you trigger it and it started alternating electric and magnetic field are produced. When it start accelerating or oscillate होता है तो electric and magnetic field are produced. So that waves are known as electromagnetic waves, as you can see in the figure over here. ये आप फिगर में इजीली देख सकते हो. ठीक है, ये आपका रेड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. दे आर प्रोपोगेटिंग कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ वेव. ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ next is the characteristics of electromagnetic radiation. Now what is the characteristics of this electromagnetic radiation? They consist of electric and magnetic field that oscillate in direction perpendicular. As you can say they were perpendicular to each other. अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रैवल कर रहा है इस वे में, तो ऑब्वियसली आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर ही होगा इस वे में. ठीक है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे ट्रैवल कर रहा था. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली उसके परपेंडिकुलर में ही जाएगा. ठीक है, उसके परपेंडिकुलर में ही जाएगा. ठीक है, हमेशा. ओके, नेक्स्ट. And all the electromagnetic waves travel in the same speed. सारे electromagnetic waves क्या करते हैं, सेम स्पीड में ट्रैवल करते हैं. और स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट डिनोटेड बाई स्मॉल c एंड इट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर दिस पर्पस, न्यूमेरिकल पर्पस. ओके, द थर्ड वन is your third characteristic is this electromagnetic radiations do not require any medium of propagation. For example, light that reaches to us, they do not require any medium of propagation. Same way electromagnetic waves do not require any medium of propagation. So now let us see some of the terms related to wave motion which is very important. Now as I said, I am throwing a stone in the water. pond में पानी है and I am throwing the stone in the water. You can see the waves generated over there.
So the waves that shows you the maximum downward displacement is known as trough, and the waves that shows you the maximum upward displacement is known as crust. Okay, for example, ये देख सकते हो आप, ये waves generate हो रही है, ठीक है. So the upper one is known as crust and the downward known is trough. उसको क्या बोलते हो आप? trough. Okay, TROUGH. Okay, is it clear to you? Okay. Next is, what is wavelength? This is very important. What is wavelength? Wavelength is nothing but the distance between the two adjacent crest or trough is known as wavelength. ये जो distance होता है आपका दो waves के crust और trough के बीच में, ये और ये दो एडजेसेंट क्रस्ट या फिर दो एडजेसेंट ट्रफ, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ. व्हाट इट इज नोन एज? वेवलेंथ. एंड वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा. उसको किससे डिनोट करते हैं हम? लैम्डा. ओके. So this is the certain basic conversion that you should know, that 1 angstrom mainly it is denoted lambda, so it is generally expressed in the terms of angstrom, units denoted as angstrom. So 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 मीटर, क्योंकि कभी मीटर में होता है, ठीक है, तो आपको यूनिट सेम करके न्यूमेरिकल्स में 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर, 1 माइक्रो इज नोन एज 10 टू द पावर माइनस 6 एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9. ये मेनली ये दो जनरली यूज़ किए जाते हैं, फर्स्ट एंड दिस वन. ओके, एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ओवर हियर, the upper maximum displacement is known as crust and the downwards maximum displacement is known as trough, and the distance between two adjacent crust is known as wavelength, and the distance between distance between two adjacent trough is also known as wavelength. Okay. Now the next is frequency. What is frequency? It is nothing but the number of waves which pass through a given point in 1 second. कि कितने waves आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर सेकेंड्स. कितने waves, ये ऐसे कितने waves ट्रैवल हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे कितने waves ऐसे ट्रैवल्स हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? द नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट. एक गिवन पॉइंट से कितने वेव्स ट्रांसफर हो सकते हैं पर यूनिट सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी. इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक वर्ड लेटर न्यू. उसको किससे डिनोट करते हैं हम? ग्रीक वर्ड लेटर न्यू. ओके. एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, what is the unit of frequency? It is cycle per second और सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड विच इज़ नोन एज सेकेंड इनवर्स. यूनिट याद रखना है, ठीक है. नाउ फ्रीक्वेंसी, इट इज़ मेनली मेजर्ड, the SI unit of frequency is hertz, second, or you can say second inverse. Now what is 1 hertz? 1 hertz is equal to 1 cycle per second. A cycle is said to be completed only when a wave consisting of crust and trough passes through a point. तभी आप बोल सकते हो कि एक साइकिल कंप्लीट है. कन्वर्जन याद रखना है. 1 CPZ, that is 1 cycle per second, is known as 1 hertz. 1 kilo Z is equal to 10 to the power 3 hertz, and 1 megahertz millihertz is equal to 10 to the power 6 hertz. ओके. सो देख सकते हो आप, लोअर फ्रीक्वेंसी वाले वेवलेंथ जितनी बड़ी, फ्रीक्वेंसी उतनी कम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल पर यूनिट सेकेंड की, कितने नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल हो सकते हैं पर यूनिट सेकेंड में, ठीक है. सो जितना वेव ज़्यादा ट्रैवल होगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा, और जितना कम वेव ट्रैवल होगा फ्रीक्वेंसी उतनी कम. तो इसके बेसिस पे मैं क्या बोल सकती हूँ? On the basis of this frequency, what I can say, that what I'm saying कि जितना वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी, जितना वेवलेंथ ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी लो, ठीक है. सो व्हाट आई सेड, दैट न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. न्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ये बोल सकती हूँ? नहीं. अच्छे से देखो क्या है कि जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उतना वेवलेंथ कम. तो व्हाट आई कैन से, न्यू इज डिनोटेड फॉर व्हाट? फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा.
व्हाट आई कैन से, न्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए मैं सी डाल सकती हूँ. सो दैट इज न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. ठीक है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा. और या फिर आप बोल सकते हो सी इज इक्वल टू न्यू बाय न्यू इंटू लैम्डा. ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस में काम होता है. एंड व्हाट इज सी? सी इज स्पीड ऑफ लाइट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है. दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. Make sure that the speed of light to air is slightly less than the speed of the light in the vacuum. जो मैंने 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बोला है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज वेव का स्पीड है, दैट इज इन वैक्यूम कंडीशन. ठीक है, बट वो एयर के अकॉर्डिंग उसका स्पीड ऑफ द लाइट डिफर हो सकता है. बट कॉन्स्टेंट मेनली आपको याद रखना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज़ द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ. हाइट ऑफ क्रस्ट और यू कैन से डेप्थ ऑफ ट्रफ. जैसे ये है, ठीक है. सो आइदर टू फाइंड द हाइट ऑफ क्रस्ट और टू आइदर टू फाइंड द हाइट ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे भी बना हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कर्व और यू कैन से ट्रफ. ये ट्रफ के बीच में ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या बताता है आपको? उसकी ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन. मतलब जितना हायर एम्पलीट्यूड द लाइट इज ब्राइटर और जितना लोअर एम्पलीट्यूड लाइट इज डिमर. फॉर एग्जाम्पल ये रहा, तो जितना बड़ा एम्पलीट्यूड आएगा उसको मेजर करने में, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड आएगा उतना उसका रेडिएशन ब्राइटनेस ज़्यादा, और जितना कम एम्पलीट्यूड आएगा ऑब्वियसली उसका लाइट इज मोर डिमर. याद रखना. ओके, नाउ सो एम्पलीट्यूड इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट टॉपिक इज नेक्स्ट वेव मोशन के कॉन्सेप्ट है वेव नंबर. व्हाट इज नाउ वेव नंबर? एज द नंबर ऑफ वेवलेंथ per centimeter and is equal to inverse of wavelength expressed in centimeter, or you can say it is inverse of wavelength. ठीक है, it is denoted by nu and it is expressed as meter per second and the SI unit. So what is wave number denoted by nu? 1 by wavelength. 1 by wavelength. जितना wave number ज़्यादा wavelength उतनी कम. जितना wavelength ज़्यादा वेव नंबर उतना कम. इट इज़ बट ऑब्वियस, क्योंकि वेवलेंथ जितना ज़्यादा होगा तो उसके नंबर ऑफ वेव्स उतने ही कम होंगे. अब वेवलेंथ जितना कम होगा उसके नंबर ऑफ वेव्स उतने ही ज़्यादा होंगे. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप. जो हमने अभी तक देखा उनके सिर्फ में रिलेशनशिप बिटवीन द वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड द वेलोसिटी. तो c इज इक्वल टू न्यू बाय लैम्डा. ठीक है, दैट इज श्योर. दैट इज फ्रीक्वेंसी अपॉन वेवलेंथ, स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता है, तो आपको अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हो. सेम वे अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है और आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, वैक्यूम कंडीशन में है, तो आप क्या ले लोगे? c बाय लैम्डा. अगर वो वैक्यूम कंडीशन में नहीं होगा और थोड़ा बहुत स्पीड चेंज होगा तो वो आपके लिए मेंशन किया जाएगा. डोंट टेक टेंशन. अगर मेंशन नहीं किया है तो वैक्यूम कंडीशन है एंड यू हैव टू टेक इट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. नेक्स्ट रिलेशनशिप यू कैन से न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा एज आई हैव सेड, और 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार. क्योंकि सी बाय लैम्डा क्या होता है आपका? c by lambda is nothing but nu. ठीक है, so 1 by lambda क्या हो जाएगा? न्यू बार, and nu is equal to c by your this wave number. So this is the relationship we will use for numerical purpose. Now let us see the numericals related to this concept. Yellow light emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580. Calculate the frequency and the wave number of this light. So what is wavelength? Wavelength is given to you 580 nanometer. Now 580 into 10 to the power minus 9 मीटर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर ऑफ दिस लाइट कैलकुलेट करना है. सो वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू व्हाट? c बाय लैम्डा है. फ्रीक्वेंसी क्या थी?
सी बाय लैम्डा, तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट सी बाय लैम्डा, सो वेर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वैक्यूम कंडीशन में है ये, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको लैम्डा की वैल्यू गिवन है, दैट इज योर दिस वन 580 नैनोमीटर। नैनोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, क्योंकि हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी मीटर में, तो कैंसिलेशन करेंगे तो हमें क्या मिलता है 5.17 × 10⁻14, ये हमें क्या मिला, वेव नंबर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी। सो हाउ टू कैलकुलेट ये हमें फ्रीक्वेंसी मिला, अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेव नंबर। तो न्यू इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, लैम्डा आपके पास है एंड आप न्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, the wavelength range of visible spectrum extends from violet, that is 400 nanometer, to red, that is 750 nanometer. Express the wavelength. So wavelength आपको दिया हुआ है लैम्डा 400, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो फॉर्मूला क्या है, सी बाय लैम्डा। सी की वैल्यू आपके पास फिक्स्ड है, लैम्डा की वैल्यू मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, तो मुझे आंसर क्या मिला, हर्ट्स में चाहिए, तो उसको हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, कन्वर्जन आपको दिए है, तो आपको मिलेगा 7.5 × 10⁻14 हर्ट्स। एंड वेवलेंथ क्या होगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने बोले तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या चाहिए, दोनों के वेवलेंथ देखने पड़ेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले के वेवलेंथ के अकॉर्डिंग आप क्या फाइंड करोगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आई होप द न्यूमेरिकल्स आर क्लियर टू यू। नाउ द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्कूल में भी जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पता है तुमको, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वेव्स प्रोपोगेट, व्हेन अ इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रिगर करते हो तो वो प्रोपोगेट करते हैं टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज़ नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अगर हम किसी चीज़ को उनके ऑर्डर के बेसिस पे जस्टिफाई करें या फिर प्लेस करें, उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम। दैट इज हाइट वाइज अगर खड़े करें क्लास में तो वो क्या हो गया, उस क्लास का स्पेक्ट्रम। ठीक है, अगर रोल नंबर वाइज खड़ा करें तो वो उस क्लास का क्या हो गया, स्पेक्ट्रम। दैट इज आइदर इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, now what is electromagnetic spectrum, definition क्या है, the arrangement of different types of electromagnetic radiations in order of increasing wavelength or decreasing frequency is called electromagnetic radiation, because they are inversely proportional, तो एक बढ़ेगा तो एक automatically क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस यू कैन सी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, दैट इज 10⁻⁻36 to the 10⁸8। 10⁸8 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, मतलब इतना लंबा वेव्स होते हैं, इतने लंबे वेव्स होते हैं कि वो 1 किलोमीटर तक हो सकते हैं। ठीक है, सो आप जब ये देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट इज नथिंग बट योर स्पेक्ट्रम, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेज। सो द complete electromagnetic spectrum is shown in you the figure. So different regions of the spectrums are identified by different mass names. Different region आप देख सकते हो, different names दिए हुए हैं already. You can easily see long radio waves, AM, FM radio, microwave, IR, UV, X-rays. This is gamma rays. Increasing frequency order, increasing wavelength order, because they are inversely proportional. Now, it is interesting to note that the visible light which human eye can detect constitute only small portion over here. आप देख सकते हैं कि द विजिबल रेंज जो है वो बहुत कम है, जो हम देखते हैं ना हमारे आइज से। जैसे मुझे दिख रहा है कि मेरे सामने रेड कलर का कुछ रखा हुआ है, वाइट कलर की बुक रखी हुई है, ब्लू कलर की पेन रखी हुई है। वाई, बिकॉज दैट ऑल कम्स अंडर विच रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड दैट इज इन विच टॉपिक, दैट इज योर दिस इज which topic, your waves topic. ठीक है, electromagnetic radiation. So it is interesting to note that the visible light which human eye can detect constitute only small portion that is from 400 nanometer to 700 nanometer, और you can say 390 to 700 nanometer, मतलब इतने रेंज में ही आपके लाइट्स के कलर फॉल डाउन होते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। इस तरफ जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, और इस तरफ जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो different colors of spectrum corresponds to the waves of different wavelengths. Okay, so the region just below the visible portion is ultraviolet. देख सकते हो आप ultraviolet
स्पेक्ट्रम दैट इज 10⁻16 हर्ट्ज में आप देख सकते हो वो रीजन में है. सो द स्पेक्ट्रम ऑफ दिस रेडिएशंस आर इंक्लूडेड इन द सन एक्स रेज. मतलब आप बोल सकते हो जितना फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है उतना वो रेस आपके लिए हार्मफुल होते जा रहा है, क्योंकि वो उतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम हो रही है वो हमको उतना हार्म नहीं करता. तो यूवी रेज कॉसेस स्किन कैंसर, ये आपको पता है. एक्स रेज, अब एक्स रेज जब होते हैं वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में फॉल नहीं हो सकते, दैट इज अगेन हार्मफुल. गामा रेज दे आर हाईली हार्मफुल. ठीक है. आई आर मतलब इंफ्रारेड रिलेटेड टू हीट. माइक्रोवेव आप जो घर पे यूज़ करते हो, FM रेडियो रेज, AM रेज एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स विच आर यूज फॉर टेलीफोन्स. टेलीफोन्स के लिए यूज़ होता है, इसलिए वो ज़्यादा हार्म आपको नहीं करता. ठीक है. सो द रेडिएशन इंक्लूड इन द सन रेज एज आई टॉट. बियॉन्ड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वन ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. डिक्रीजिंग वेवलेंथ. सो वी हैव द रीजन ऑफ एक्स रेज दैट इज 10⁻19 हर्ट्ज. ओके. दिस आर प्रोड्यूस व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एक्सरेज कब प्रोड्यूस हो रहा है? जब स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं एक हैवी मेटल पे और वो टारगेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सरेज. ठीक है. नाउ द पोर्शन बिलो विजिबल रीजन दैट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इंफ्रारेड. डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है ना, तो उसमें क्या है, कौन सा है आपका? इंफ्रारेड. सो दिस प्रोड्यूसेस हाई थर्मल इफेक्ट्स, थर्मल इन द सेंस रिलेटेड टू हीट, and has a very good heat radiation. Now below infrareds you can see the microwaves. Microwaves कहाँ use होते हैं? They are used in telephone circuits and radar. ठीक है. तो वो इतना harmful नहीं होता है. Below which the lowest frequency range is used for broadcasting. AM ये सब किसके लिए यूज़ किया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है. समझ में आया? So electromagnetic spectrum is nothing but the increasing or decreasing order of the light. ठीक है. either in the decreasing frequency wave or you can say increasing wavelength. तो ये आप देख सकते हो जो विजिबल रीजन का फॉल हो रहा है, पेट एस्पेक्ट्स, यूवी रीजन, फ्लोरोसेंस, MRI जो हम करते हैं. ठीक है. इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग वेवलेंथ, दिस यू शुड नो ईजीली. ठीक है. कि किसका रेंज ज़्यादा है. हमारा जो विजिबल रेंज होता है वो कौन से रेंज में फॉल करता है? 400 to 700 नैनोमीटर. So I hope the topic is clear to you. Again, I am sending you a practice question related to it. You can solve it, and if you have any doubt regarding this topic that we have covered today, you can ask me. Okay? Thank you.